हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल बच्चों की पाठशाला। इस चैनल में हम फर्स्ट टेंसेस का टॉपिक कवर करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द टेंसेस वी हैव थ्री काइंड ऑफ टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज past tense, and the third one is future tense. When we talk about present tense, we have first tense, present indefinite tense. We have three kind of tenses: present, past, future. First we are discussing present tense. Present tense, we have four parts in present tense. First, present indefinite tense. Second, present continuous tense. Third, present perfect. And fourth is present perfect continuous. First we are discussing present indefinite tense. Present indefinite tense is the tense that is widely uses in we can say. First we talk about present indefinite tense. Present indefinite tense almost covers 70% English speaking and conversation and grammar. People make so many mistakes in writing or in speaking in present indefinite tense. like पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी पहचान क्या है. हाउ कैन यू रिकग्नाइज दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? द रिकग्निशन, द आइडेंटिफिकेशन इज, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए उसके शब्द की एंड में क्या है उसको रिकग्नाइज करते हैं. लाइक ता है, ती है, ते हैं. When the sentence finishes with ता है, ती है, ते हैं, this is indefinite tense. Indefinite tense uses widely in grammar. Like if I say बच्चे पार्क में खेलते हैं, we say children play in the park. Play in the park. Okay. When I say राधा खाना पकाती है, राधा cooks food. थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बच्चे और सभी लोग थोड़ा बहुत मिस्टेक्स करते हैं. कभी इसमें समटाइम इट यूजेस, वी यूज़ फर्स्ट टेंस, समटाइम वी यूज़ एस और ई एस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो लाइक in first sentence I have written children play in the park, and in second sentence I have written Radha cooks food. In first sentence that is a play, in second sentence cooks. I use play in its first form, I use play with s. So I'm telling you how to use these things. Like we use first form of verb. Verb means kriya. Verb means kriya, means जिससे किसी काम के करने के या होने का पता चलता है. Like action words. What action words? We use first form of verb with I, we, you, they and plural numbers and
plural numbers. Listen carefully. We use first form of verb in present indefinite tense when we have subject I, we, you, they and plural numbers. Like तुम मुझसे बात करते हो. I use you. Now I use first form of I. You talk to me. I use first form of it. This is the correct. And the second rule is we use first form of verb plus s or es with he, she, it and singular numbers. We use first form of verb with he, she, it and singular numbers. Like कविता कपड़े धोती है. कविता is a subject and we use, and कपड़े धोना means wash, but we will use here washes. Kavita washes clothes. Kavita is a singular form and I use s or es with the first form of verb and the verb is wash. Verb was wash and we use es with this. सो बच्चों आप कह सकते हो कि इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करने के लिए. मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप जो मैं आपको टेंसेस सिखा रही हूँ, जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ और जो रिकग्निशन, जो इसकी पहचान बता रही हूँ, इसके रूल्स को अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, यू विल नेवर फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी. नेवर एवर. नाउ each and every sentence has three kind of sentences, like statement sentence, negative sentence and interrogative sentence. If I make Kavita washes clothes in negative form, then I will write Kavita does not wash clothes. Okay, does not, and here is first form of verb. Later I will clarify how it is used. Kavita does not wash clothes. Does not means नहीं धोती है. धोना means wash. We will not use washes. We will use here wash because we have used here already does not. Now we are making, this is negative form. What is this? Negative form of sentence. Now we are making interrogative form of sentence. What? Interrogative form of sentence. Form like क्या कविता कपड़े धोती है. अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में, प्रश्नवाचक में, तो ये सेंटेंस बन जाता है कि क्या कविता कपड़े धोती है. डज कविता वॉश clothes and put the question mark in the end. Okay, this is the negative and interrogative form of sentence. First we have written here, first sentence was बच्चे पार्क में खेलते हैं. बच्चे पार्क में खेलते हुए जो हमने वाक्य किया था वो हमारा स्टेटमेंट फॉर्म में था. अब हम इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस वाक्य को दोबारा करते हैं, सेंटेंस को फिर से करते हैं. पार्क, ये था बच्चे पार्क में खेलते हैं. टे हैं से हमें पता चला, वी कम टू नो
दैट दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। धोती है, ती है से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन वी रिकॉग्नाइज व्हाट काइंड ऑफ टेंस इज दिस, उसी तरह से हम उसके जो फॉर्म ऑफ रूल्स हैं उसको हम उसी तरह से यूज़ करेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है बच्चे पार्क में खेलते हैं, इंग्लिश में होगा ये चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। ओके, अब अगर हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो ये सेंटेंस बन जाएगा चिल्ड्रन डू नॉट प्ले in the park. Okay, this is your negative form. Now we are making an interrogative form. Do children play in the park? In the park. Okay, and put the question mark in the end. Okay, now look, children play in the park. बच्चे पार्क में खेलते हैं। बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द पार्क। क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं? डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। दिस इज द 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अब मैं आपको इसके रूल्स जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में किस तरह से रूल्स को अप्लाई किया जाता है वो बताने जा रही हूँ। उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। और अगर हमने इस वाले टेंस को सीख लिया तो हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, बहुत इजी होता है हमारे लिए। इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए रूल्स, इंटेरोगेटिव रूल्स, डू और डस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। ओके, हमने यहाँ पर डू और डस को सबसे पहले लगाना है इंटेरोगेटिव फॉर्म में। डू या फिर डस, depend on the use of sentence. Do or does plus subject plus V1. Here is V1 means first form of verb. First form of verb. What is this? First form of verb plus object. जैसे कि मैंने अभी फिर से बताती हूँ मैं आपको, लता मंगेशकर क्या लता मंगेशकर मधुर गीत गाती हैं? गीत गाती हैं। बच्चों यहाँ पर लता मंगेशकर है, जो लता मंगेशकर है सिंगुलर फॉर्म है, तो ये हमारा डज वाला सेंटेंस है। तो वी विल यूज हेयर डज इन द बिगनिंग। डज लता मंगेशकर सिंग, फिर से सुनो, सिंग, सिंग्स नहीं, सिंग्स इसलिए नहीं क्योंकि हम इसे इंटेरोगेटिव फॉर्म में बना रहे हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म में बना देते टाइम पर मैंने आपको रूल्स में बताया है, ये देखो यहाँ पर ध्यान से। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस हमको डू या डज लगाना होता है। क्योंकि लता मंगेशकर एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हमने यहाँ पर डज लगाया। अगर हमने डज को लिखा है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। डज लता मंगेशकर सिंग ए सॉन्ग and put the question mark in the end. Okay, this is the interrogative form of sentence. Now we are making negative form of sentence. Subject plus do not or does not plus V1 plus object. Subject plus do not या फिर does not plus first form of verb plus object. देखो जैसे हम करते हैं यहाँ पर राधा अच्छा नृत्य मतलब नाचना नहीं करती है।
तो यहाँ पर राधा सिंगुलर नंबर है, हम लिखेंगे यहाँ पर राधा, क्योंकि हमें ये नहीं करती है, नहीं करती है, ती है और नहीं भी है, तो हमको पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फॉर्म है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राधा, राधा सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का यूज़ होगा, डज नॉट डांस वेल, कंप्लीट सेंटेंस। ओके, ओके चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू समराइज द टॉपिक, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, समझ में आए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसको समझने में, तो मैं आपको श्योर करती हूँ कि तुम मुझे कमेंट में लिख कर दो, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके तुरंत ही बताऊँगी। ओके, हम सबसे पहले जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चे उसको अच्छे से कर नहीं पाते हैं। मैं भी स्कूल में टीचर थी, मैं चेक करती थी, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक्स करते थे। बच्चों को फिल करने के लिए टेंसेस दिया जाता था, वो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं पहले आपको उसी टॉपिक को लेके कवर करने की कोशिश करूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की स्पीकिंग में और स्पीकिंग में एंड राइटिंग स्किल्स में आपके मिस्टेक्स कम से कम हो। मेरी ये कोशिश रहेगी। हम सबसे पहले टॉपिक जो ले रहे हैं वो है टेंसेस का टॉपिक। टेंसेस के टॉपिक में टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंसेस को अगर हम आगे कैटेगराइज करें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाता है। 4 टेंसेस ये हो गए। अब टोटल जो टेंसेस होते हैं, नंबर ऑफ टेंसेस, वो टोटल हर एक को कैटेगराइज करते हैं। लाइक प्रेजेंट को कैटेगराइज किया 4 पार्ट्स, देन पास्ट को कैटेगराइज किया 4 पार्ट्स, देन फ्यूचर को कैटेगराइज करेंगे तो 4 पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ टेंसेस आर 12 नंबर ऑफ टेंसेस। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा टफ कहेंगे या जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कहेंगे, जो राइटिंग स्किल्स में, स्पीकिंग स्किल्स में यूज़ होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपका फर्स्ट टेंस है। तो मैं आज आपको इसी के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम इसको समराइज़ कर रहे हैं फिर से। सबसे पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आपको यही नहीं पता होगा, आप उसको पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा टेंस है, तो आप ना तो उसके बारे में लिख पाओगे, ना ही उसको समझ पाओगे, ना ही उसके बारे में बात कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान करने का तरीका बताती हूँ। पहचान जो है वो ता है, ती है, ते है। अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई वाक्य ता है, ती है, ते है पर ख़त्म होता है, फिनिश होता है, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं नहाती हूँ, नहाती ती हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सीता गाना गाती है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम खाना खाती हो, ती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको जब एक वाक्य ख़त्म होता है, उसके एंड से आपको पता चलाना होता है कि ये कौन सा टेंस है। तो हम इसी को कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया, बच्चे पार्क में खेलते हैं। बच्चे चिल्ड्रन हो गए, चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है, तो चिल्ड्रन के प्लूरल नंबर के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। जैसे चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट मैंने अनदर काइंड ऑफ सेंटेंस लिया, जैसे कि राधा खाना पकाती है, राधा कुक्स फूड। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा चिल्ड्रन कि यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ते हैं, तब आप इसको यूज़ कर पाओगे। मैंने जो शायद अपने 6th 7th 8th में याद किए, वो मुझे अभी तक याद है, उसकी बदौलत शायद मैं अभी भी कुछ कर पाती हूँ इसके बारे में। फिर हम बात करते हैं, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको जितनी भी हैं वो अच्छे से आनी चाहिए। जितनी आपके पास वोकेबलरी में 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होंगी, उतना ईजी और उतना ही अच्छा काम आप लोग कर पाएंगे। जैसे कि अब चलिए अब इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर्स, इनके साथ हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कुछ भी हो सकता है, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, तुम मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी। उसके बाद हम फिर बात करते हैं आगे इसकी
काइंड की वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर्स। अब जो इसका दूसरा जो इसका रूल है वो ये है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द नीड लगाया जाता है। जैसे ये है कविता कपड़े धोती है, कविता वॉशेस क्लोथ्स। अब आप कहेंगे मैम इसमें वॉशेस क्यों आया? क्योंकि कविता सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस को सप्लाई करना होता है, तो हमने किया उसको। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बनाने जाते हैं तो हमें डज नॉट, इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए हमें डज नॉट का यूज़ करना होगा। तो एक सेंटेंस बना आपका कविता कपड़े धोती है, ये आपका स्टेटमेंट सेंटेंस है। अब हम इसको नेगेटिव फॉर्म में कर रहे हैं, कविता कपड़े नहीं धोती है, तो वो इंग्लिश में बन जाएगा कविता डज नॉट वॉश क्लोथ्स। अब डज नॉट की वजह से हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। यहाँ पर एस या ई एस फिर से, क्योंकि डू के साथ ई एस लग चुका है, वो डज बन चुका है, तो हमको यहाँ पर वॉश के साथ एस या ई एस को सप्लाई नहीं करना है। अगर हम बना रहे हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाते हैं, क्या कविता कपड़े धोती है, तो हमने क्या करना है, इसमें डज को पहले ले आएंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे, फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डज कविता वॉश क्लोथ्स। इज़ दैट क्लियर? और इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया, रूल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। हमने वहाँ बात की थी बच्चे पार्क में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। अब अगर हमें उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द पार्क। जो प्लूरल फॉर्म्स वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहता है और उसमें डू नॉट लगा देते हैं हम। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब है और इन द पार्क ऑब्जेक्ट है। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द पार्क। और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में मीन्स प्रश्नवाचक में क्वेश्चन की तरह से पूछते हैं तो हम पूछेंगे क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो हम इसको लिखेंगे डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब हम इंटेरोगेटिव के रूल्स लिखने जा रहे हैं। लिखते हैं पहले। सबसे पहले हमें इंटेरोगेटिव को जो बनाना होता है, मीन्स क्या वाले वाक्य बनाने होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमने क्या वाले वाक्य बनाने हैं तो हम उसमें डू या फिर डज, जो भी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस होता है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्या लता मंगेशकर मधुर गीत गाती है? डज लता मंगेशकर सिंग अ सॉन्ग? डज, फिर से सुनो ध्यान से, डज। बहुत सारे बच्चे इसको डज को डस भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप सभी बच्चे कोशिश किया कीजिए कि जब आप कोई काम करें, कोई सेंटेंसेस करें, तो उसको अच्छे से स्पीकिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से हम गलत बोलते हैं वो हमारी हैबिट में हमेशा के लिए बना रहता है, फिर हमारी स्पीकिंग इतनी पुअर हो जाती है कि वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। यू विल स्पीक डज, डज लता मंगेशकर सिंग अ सॉन्ग। अगर हम नाउ वी आर कन्वर्टिंग सच सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म। ओके, नेगेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हम राधा अच्छा नृत्य, अच्छा नहीं नाचती है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, राधा डज नॉट डांस वेल। ये इस तरह से बनाया। तो बच्चों, ये मैंने आज ही अपनी बच्चों की पाठशाला के नाम से अपना चैनल बनाया है। इस चैनल में आपको मैं टेंसेस से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड और जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड आएगी उससे रिलेटेड अपने कुछ चैप्टर्स को और लिटरेचर के चैप्टर्स को, आपके सब्जेक्ट के और आपके कोर्स के चैप्टर्स को कवर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक लगा हो तो यस लिखना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इंतज़ार करूँगी। ओके, बाय बाय।